Hello everyone, welcome back to our channel UPSC on Mars. So today we will be beginning with our daily PYQ series and इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम daily 5 PYQs लेंगे. So we'll be beginning with polity today and we'll be going topic wise in each subject. To be more accurate, we'll be going chapter wise in polity. ठीक है? So let's begin. Okay, before proceeding with the video, a little about our courses. So our flagship program is our customized mentorship program, जिसमें we only have 200 limited seats, and इसके main features are you'll get a dedicated mentor with 24/7 availability. Then you will get detailed planners, as per your needs. Apart from this, a lot is there in this program, including CSAT guidance, PYQs, and current affairs of 2.5 years. So, to know more about this program and all other programs of ours, please go and watch our first video. उसमें सारे programs के बारे में detail में बताया गया है. I'll be sharing that link in the description, so you can refer from there. All right. So आज के हमारे topics हैं chapter number 1 historical background and chapter number 2 making of the constitution. So here's our first question. The distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the act provided in the. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इट्स आस्किंग कि currently the distribution that we have, since it is mentioning Indian Constitution, so the current distribution that we have between center and states, वो किस एक्ट से we have taken. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, so let's try to solve it logically first. All right, so the other acts, see, first one is Morlemento, then we have Montagu-Chelmsford and Government of India Act and Indian Independence Act. So if we have read polity even once or twice, we know कि this act, Government of India Act 1935, इससे हमने बहुत सारे features लिए हैं directly. In fact, we gave a lot of credit to this act for framing our constitution, right? तो उस logic से इसमें हम काफ़ी weight डाल सकते हैं as the correct answer. Okay? रही बात दूसरे ऑप्शंस की, तो ये ऑप्शंस तो वी कांट हैव बिकॉज अगर हमने व्हेन वी रीड हिस्ट्री सो वी नो कि इन दोनों एक्ट्स में कितने सारे ऐसे फीचर्स, इनफैक्ट इन दोनों एक्ट्स को पूरी तरह से ही वी डिस्कार्डेड द इंडियन लीडर्स, राइट? तो ये दोनों होना तो मुश्किल है कि इनमें से कुछ भी फीचर्स ऐसे होंगे जो हम करंटली फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, राइट? तो उस लॉजिक से वी कैन कम टू दिस आंसर ऑफ आवर्स. ठीक है, then if we have read the act, so of course we know the answer that it has been derived from Government of India Act 1935. Let's read a little more about this act. Okay, so इसमें क्या क्या changes आए थे. इसमें पहली चीज़ डायरकी विच वॉज देयर इन द प्रोविंसेस, राइट? इसके पहले जो एक्ट आया था 1919, दैट वाज इन फैक्ट दैट इज़ फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग डायरकी इन द प्रोविंसेस. सो प्रोविंसेस से डायरकी वॉज अबॉलिश्ड एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर. अलॉन्ग विद दैट 80% ऑफ द बजट दैट वॉज स्टिल नॉन वोटेबल सेंटर के केस में. ठीक है, देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड फेडरल असेंबली, ये दो चेम्बर्स जो हैं, ये दो, सी व्हेन वी रीड अबाउट दिस चेंबर्स वी कैन सी द सिमिलैरिटी कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है हमारे करंट सिस्टम से. काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच वी हैव लाइक इन प्रेजेंट टाइम्स राज्यसभा, दैट इज परमानेंट, डायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, एंड 1/3 मेंबर्स जो थे दोज हैड टू रिटायर एवरी 3rd ईयर. ठीक है, देन फेडरल असेंबली, इट हैड अ 5 year tenure, सो ये परमानेंट बॉडी नहीं थी. ठीक है, then partly indirectly elected from British provinces and partly nominated. Again, 1/3. No confidence motion, जैसा कि हमारे प्रेजेंट सिस्टम में है कि सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, वैसे ही इस एक्ट में था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन
सिर्फ इस हाउस से पास होगा, दैट इज़ फेडरल असेंबली। ठीक है। नाउ प्रोविंसेस में क्या सिस्टम आया था? प्रोविंसेस वर मेड ऑटोनमस। इनफैक्ट उन्हें एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता अब। गवर्नर was superior. Powers were derived directly from the crown. They had independent financial powers. ठीक है, so they could borrow on their own security. Then इनके पास भी bicameral legislature था, लेकिन only in 6 provinces, not all the provinces. All right. In case of provinces, it was only 40% budget which was non-votable. Unlike the center, जहाँ पे हमारे पास 80% budget was non-votable. ठीक है। देन रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो इनमें डिफरेंस क्या था? पहली चीज़ तो ये कि यू शुड रिमेंबर द रिजर्व सब्जेक्ट्स बिकॉज ये सिर्फ 4 हैं, तो दिस कैन ईजिली बी आस्क्ड इन वन ऑफ द ऑप्शंस, या फिर सिर्फ ये मेंशन कर दिया जाएगा, इट विल बी आस्क्ड इन सब्जेक्ट्स में से विच सब्जेक्ट्स वर द रिजर्व्ड वंस, राइट? तो रिमेंबर ऑल 4। देन इन रिजर्व सब्जेक्ट्स के केस में गवर्नर जनरल विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता था, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है। तो they were not supposed to answer anybody in case of whatever decision they were taking in matters of these 4 subjects. All right. इसके काटना काटना कहाँ से काटना है? कैसे काटना है? अरे वर्ड ही नहीं आ रहा है इसके अ, अरे इसके अगेंस्ट, इसके कंपैरिजन में। ठीक है। देन इन केस ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या था? गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी आ रही है एंड थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी आ रही है कि गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगा दैट हैज़ टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ऑल राइट। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दीज 4। चलो नेक्स्ट, जॉइंट सिटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। फिर आता है हमारा देयर वर 3 लिस्ट्स। देन रेसिडेंटी पावर्स, ये जो लिस्ट हमारी हैं 3 लिस्ट थी लाइक वी हैव अभी करेंटली। उसके अलावा रेसिडेंटी पावर्स का प्रोविजन ये भी जो हमारे करंट सिस्टम में भी है। सो उस टाइम पे रेसिडेंटी पावर्स किसको कॉन्फर की गई थी? गवर्नर जनरल। ठीक है। एंड गवर्नर जनरल मीन्स द सेंटर वन, नॉट द प्रोविंसेस वन। Legislature was referred to as king and council. Veto was with governor general. Okay. Now separate electorate. Separate electorate में क्या change हुआ था? I should say addition हुआ था कि it was extended to depressed classes also. Then franchisee was limited to 14% of population only. लेकिन एक बड़ा change ये हुआ था इसमें कि it was extended to women for the first time. ठीक है। लेकिन इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है कि इट वाज डन ओनली इन प्रोविंसेस एंड नॉट प्रिंसली स्टेट्स। ऑल राइट। देन दे हैड सेम राइट्स एज मैन। ओके। लेबर ऑल्सो वॉज इंक्लूडेड इन द फ्रेंचाइजी। देन फेडरल कोर्ट को प्रपोज किया गया था इस एक्ट में, विच वॉज फाइनली इस्टेब्लिश्ड इन 1937। और इस कोर्ट के पास कौन सा ज्यूरिसडिक्शन था? ओरिजिनल प्लस एपेलेट। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पोस्ट वॉज अबॉलिश्ड। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड रिजिड। ओके, वैसे तो ये स्टार्टिंग से ही रिजिड था, ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल था एंड फिर रिजिड बनाया, बट ओके, स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिजिड बिकॉज इट कुड बी अमेंडेड ओनली बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑल राइट। नाउ दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। तो इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्स क्या था? लाइक वी सी आफ्टर एवरी एक्ट कि किस पार्टी या फिर किस ग्रुप ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। सो इन केस ऑफ दिस एक्ट इट वॉज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। हिंदू महासभा, नेशनल लिबरल फाउंडेशन, ये 2 एक्सेप्शंस हैं। दीज 2 ग्रुप्स दे वर इन फेवर ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। बाकी आईएनसी ने इसको यूनानिमसली रिजेक्ट किया था। इसके लिए नेहरू जी ने एक लाइन बोली थी दैट
We are provided with a car, all brakes and no engine. Though not really important, but still might be asked. Chalo, let's move to next question now. In the Federation, established by the Government of India Act of 1935, restitutory powers were given to. Just now we read, these were transferred to Governor General. ठीक है. Okay, next question, question number 3. I'm sorry. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Now, this is a question direct from the chapter which is making of the Constitution. So, firstly, answer of this question is Jawaharlal Nehru. Let's see some major committees. Okay, Union Powers Committee under Nehru. ठीक है. I have highlighted थोड़ा सा अलग अलग कलर से, so it will be easy to recall and see कि कितनी committees major leaders के अंडर थी. Okay. Also you can download this PDF from our Telegram channel. उसकी link भी I'll share in the description. ठीक है. Okay, so Union Powers Committee under Nehru, then Union Constitution Committee again under Jawaharlal Nehru, Provincial Constitution Committee Sardar Patel, Drafting Committee almost everybody knows Ambedkar, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas. मेजर जो हेड थे वो सरदार पटेल थे. इसके अंदर थी कुछ सब कमिटीज. ठीक है. फंडामेंटल राइट सब कमिटीज. ऑल्सो दीज सब कमिटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द मेजर कमिटीज. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी किसके अंडर थी? कृपलानी जी के अंदर. देन माइनॉरिटीज सब कमेटी H.C. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी. दिस वाज अंडर गोपीनाथ बारदोलोई. आई हैड डिराइव्ड सम बारदोलोई. अच्छा, इसमें आई जस्ट हैड समथिंग कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं बिकॉज इनके नेम्स याद रखने में थोड़ा सा इशू होता है. तो दिस इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स. ठीक है. तो इस केस में आप इनके सरनेम से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो कि बारदोलोई इज एक लिटिल बिट रिलेटेबल टू ट्राइबल्स के जो सरनेम्स होते हैं, सो यू कैन रिमेंबर इन दैट मैनर. ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम. ये थी A.V. ठक्कर के अंडर. ठीक है. अक्सर गोपीनाथ और बारदोलोई और A.V. ठक्कर में कन्फ्यूजन होता है, सो इनका यू कैन रिमेंबर विद दिस. ठीक है. चलो नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी. दिस वाज अंडर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट्स कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू. स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद. देन वी हैव सम माइनर कमिटीज. माइनर कमिटीज में भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड ओनली दीज टू बिकॉज ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So Finance and Staff Committee under Rajendra Prasad and Ad Hoc Committee on the National Flag again under Rajendra Prasad. Moving on to next question. With reference to Indian history, members of the Constituent Assembly from the provinces were. Now see, सीधा आंसर पे जाने से पहले let's try to solve this logically. Members of the Constituent Assembly it is asking. ठीक है. Now if we have little idea about the situation of those times, which was like 1946, right? तो उस टाइम पे we had this urgency and paucity of time कि हम डायरेक्ट इलेक्शन तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे उस टाइम पे, राइट? बिकॉज डायरेक्ट इलेक्शन इज़ अ कम्बरसम टास्क. तो उस टाइम पे ये चूज़ करना आई गेस ये मुश्किल है कि ये चूज़ किया गया हो. ठीक है. तो इसको हम इससे एलिमिनेट कर सकते हैं. देन आता है नॉमिनेटेड बाय द INC एंड द मुस्लिम लीग. सो यहाँ पे दो चीज़ें हमें ध्यान देना है कि एक तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला है. तो इसमें पूरी तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स हों इसके चांसेस काफ़ी कम हैं बिकॉज आर लीडर्स हैव प्रेफर्ड स्टार्टिंग से ही कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हों जो डिसीजन लें कंट्री के लिए, राइट? देन आता है हमारा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है. तो ये थोड़ा सा पॉसिबल है बिकॉज हियर द इलेक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना? ये काफ़ी टफ टास्क है.
और थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क भी है, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल, राइट? तो इसको होल्ड पे रखते हैं कि ये सही हो सकता है। लेट्स रीड द लास्ट वन ऑल्सो। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगेन ये नॉमिनेशन काइंड ऑफ जो है प्रोसेस है, तो इसे प्रेफर नहीं किया गया होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ एक ही ऑप्शन है जो कि रिलायबल लग रहा है, विच इज ऑप्शन सी। तो ऐसे लॉजिकली भी हम आंसर पे आ सकते हैं अगर हमने डायरेक्टली नहीं भी पढ़ा है किसी चीज़ को। तो ऑफ कोर्स वी शुड हैव लिटिल आइडिया ऑफ द बैकग्राउंड कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, राइट? चलो, let's read a little about the Constituent Assembly. So, Constituent Assembly, it was partly elected and partly nominated. Election के केस में of course it was indirect election by the members of provincial assemblies. ठीक है, then assembly में सारे ही sections थे including women. However, Mahatma Gandhi was not a member of Constituent Assembly. So, अब हम आ गए हमारे last question पे. Who was the provincial president of the Constituent Assembly before Rajendra Prasad took over? This is a direct question and a factual question. The answer is Sachidanand Sinha. Let's read. First meeting. Remember, first meeting of Constituent Assembly. When was it held? December 9, 1946. Sachidanand Sinha was made temporary president and then Dr. Rajendra Prasad took over. इसके अलावा both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari, they were made vice presidents. So the assembly had two vice presidents. ठीक है? So that's all in our today's PYQ series. अच्छा, many people must be thinking now कि सिर्फ 5 PYQs क्यों? तो 2-3 रीज़न्स हैं इसके पीछे कि अगर हम बड़ा सा वीडियो बना देंगे 50-100 PYQs का, या फिर इनफैक्ट 10-20 PYQs, तो वो ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डेली बेसिस पे फॉलो करने के लिए। एंड आवर प्लान इज़ कि आप सारे मेजर PYQs कवर कर लें प्रीलिम्स तक, एंड प्रीलिम्स में भी काफ़ी टाइम है, राइट? तो इवन व्हेन वील बी कवरिंग 5 PYQs डेली, वी विल कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ PYQs। ठीक है, और हमको सरफेस लेवल पे PYQs नहीं करना है। जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं किया है, उसको अगर किसी लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। उसमें कुछ अगर और इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको भी देख रहे हैं। देन वी आर ऑल्सो रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ़ एनी अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, राइट? तो अगर हमें अच्छे से करना है तो इट इज़ बेटर कि हम कम करें बट अच्छे से करें। ठीक है, और ये एक आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा डेली बेसिस पे फॉलो करने के लिए, बिकॉज़ यू कैन वॉच द लेक्चर कभी भी, बिकॉज़ ये 15 से 20 मिनट का होगा हार्डली, तो आप कभी भी देख सकते हो, है ना? आपको प्रिपेयर नहीं करना है कि यार ये इसके लिए टाइम निकालना होगा, ठीक है? एंड इस तरह से यू विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, व्हिच इज़ पीवाईक्यूज़, राइट? ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको डेली बेसिस पे इसकी अपडेट्स मिलते रहें एंड आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें अलॉन्ग विद आवर डेली करंट अफेयर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।